تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا. اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا. 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہے نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھری ہے. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت، سمجھتے ہو؟ اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں.
اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتدبی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتدبی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جو معتدبی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, باقی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدبی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے اور سب. میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے, جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں.
देखो शरीयत का और कॉमन सेंस का भी एक उसूल है कि जब किसी, पहले मुश्किल उर्दू में समझाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, जब किसी हुक्म का मदार हकीकत किसी हकीकी सबब पे रखना मुमकिन नहीं होता ना, तो सबब ज़ाहिर पर हुक्म का मदार रखा जाता है। मुश्किल है मुझे पता है, आसान करके समझा रहा हूँ। देखो हम जो सफर में 2 रकतें पढ़ते हैं, इसकी असल वजह है मशक्कत। क्यों हम 2 रकतें पढ़ते हैं? भाई टेंशन है सफर में। अल्लाह ने नमाज क्या कर दी कि भाई सफर में आदमी ऐसे राहत में नहीं होता जैसे घर में होता है ना, तो अल्लाह मियां ने क्या हुक्म दिया कि भाई कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। तो असल जो वजह है ना सफर में 4 की 2 जो अल्लाह ने कर दी है, इसलिए कि सफर में आदमी इतनी खुशी और राहत में नहीं होता बल्कि थोड़ी सी टेंशन में होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कहते कि टेंशन ही पर हुक्म का मदार है, तो ये टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाती। वजह उसकी है कि हम सोचते रहते पता नहीं मुझे सफर में टेंशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बाज दफा लोग सफर में घर की निस्बत ज्यादा खुश होते हैं। आप जा रहे हो जहाज में या ट्रेन में, बड़ा मजा आ रहा है, आदमी को यार अल्लाह मियां ने तो कहा था टेंशन की, अब तो टेंशन नहीं हो रही। तो वहमी तो वैसे ही बढ़ जाता, वहमियों का प्रोग्राम ना, वो तो सारा जो 6 घंटे जिसका वजू नहीं होता वो ये कैसे सोचेगा कि मुझे टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगर हो रही है तो कितने कितने किलो टेंशन हो रही है। बाज़ दफ़ा हो रही है लेकिन आदमी कहता है यार इतनी तो मुझे घर में भी होती है, या हो सकता है नहीं होती है। तो इस्लाम इन बखेड़ों से निकाल के अल्लाह मियां ने क्या किया, भाई सफर सबब है टेंशन का और टेंशन सबब है नमाज का। तो असल सबब तो टेंशन है, लेकिन अगर टेंशन पे मैंने डाल दिया ना मदार, तो ये टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लिहाजा सफर पे डाल दिया मैंने, अब सफर होगा तो छोड़ दो, टेंशन है या नहीं वो 2 पढ़ा करो। नहीं है बात, मेरा ख्याल है। तो ये टेंशन से बचाने के लिए अल्लाह ने कह दिया, अब सफर में चाहे इंजॉय भी कर रहा हो ना आदमी, तो भी हम कितनी पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं। और मकाम पे जितनी मर्जी टेंशन में हो फिर भी पूरी 4 पढ़ते हैं। तो ये उसूल, और ये दुनिया में भी ये उसूल चलते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो यहां भी अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह मियां ने फरमाया असल में तो तुम पे नमाज फर्ज है इसलिए कि मेरे एहसानात तुम पर बहुत हैं। अब वो एहसानात तो हर वक्त बोलो होते रहते हैं। अब हर वक्त एहसानात हैं तो अब हर वक्त पढ़ते हैं नमाज, वो तो नामुमकिन है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि भाई देखो अल्लाह के एहसानात में जो तजद्दुद होता है ना, जिद्दत आती है, वो टाइम के लिहाज से आती है। हमारी पूरी जिंदगी का निजाम किससे चल रहा है? टाइम से चल रहा है। तो वक्त जैसे ही तब्दील होता है ना, एक नई नेमत का ज़ुहूर होता है। तो तब्दीली वक्त पे हुक्म का मदार रख दिया अल्लाह ताला ने। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो समझ लो कि अल्लाह की नई नेमत मिल रही है तुम्हें, तो उस नई नेमत पे शुक्राने के लिए तुमने क्या करना है? नमाज पढ़नी है। तो टाइम चेंज होता है, तो टाइम जो है ना, अब टाइम तो 24 घंटे में हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो वही बात है, अल्लाह ने कहा हर सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन दुलूके शम्स वाला टाइम और रात वाला टाइम और वो कुरान अल फजर, फजर वाला टाइम, ये इसमें टाइम में बड़ा तगय्युर आता है। तो बड़ा तगय्युर आता है तो नई नेमत मिल रही है। और लिहाजा जब नई नेमत मिल रही है, हकीकत में ना भी मिल रही हो और हकीकत में इससे पहले भी मिल रही हो नहीं, लेकिन अब फर्ज ये कर लिया गया है कि जब टाइम चेंज होगा तुम्हें नई नेमत मिलेगी, और नई नेमत मिलेगी तुम पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो आके। तो इसलिए उलमा ने इस मसले को बड़ा अच्छा समझा, उसूल फिक़ह में एक्सप्लेन किया है कि नमाजों का जो सबब है ना वो क्या है? औकात की तब्दीली। जैसे 2 रकतों का सबब सफर है, हालांकि असल में नहीं है, असल में तो कुछ और है, लेकिन अब अल्लाह ने क्या बना दिया सफर को। तो ऐसे ही नमाजों के वाजिब होने का सबब क्या है? वो वक्त में बड़ी तब्दीली। तो ये 5 टाइम इस जमीन पर ऐसे हैं जिसमें बड़ी तब्दीली होती है, और इन बड़ी तब्दीलियों से इंसान को अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। अगर ये टाइम रुक जाए ना तो हमारी जिंदगियों की रंगीनियां खत्म। सिर्फ फजर ही का टाइम हो, जोहर में जो अलग सी इंसान की फीलिंग होती है, असर में अलग फीलिंग होती है, मगरिब में अलग, इंजॉय करता है इंसान लाइफ को ना। हर वक्त उसे मगरिब का टाइम चाहिए, उसे ईशा भी चाहिए, लेकिन हर वक्त ईशा नहीं चाहिए। उसे फजर की बहारें भी चाहिए, लेकिन हर वक्त फजर की बहारें नहीं चाहिए। उसे दोपहर की चिलचिलाती धूप भी चाहिए, हर वक्त नहीं चाहिए। शाम की ठंडी छांव भी चाहिए जो असर के टाइम होती है। और कैसे समझाएं मेरे भाई मेरे पास इसके अलावा? तभी तो 5 नमाजें, तो 2 नमाजें इकट्ठी बैठी नहीं होती, समझ रहे हो? क्योंकि औकात 5 टाइम चेंज होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है। तो 3 टाइम क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम नमाज? बाकी कुरान और हदीस के हवाले क्या है वो मैं इंशाल्लाह भी रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा, उस पर वो आ जाएंगे। तो मेरे भाई, तो ये इस्लाम है जो हमें कहता है कि जब वक्त में बड़ी तब्दीली होगी तो तुम्हें अल्लाह की नेमत को वाकई होता भी है। आप रात को सो जाओ टाइम पे, सो वो सादिक का वक्त जब होता है ना, नींद पूरी होती है, खुदा की कसम दिल में जरा सी भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा होना तो इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारियां पैदा होती हैं सुबह के टाइम को देख कि मेरे रब ने मुझे रात को सुला दिया और बिल आखिर अब सूरज दोबारा से निकल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला है। दिल चाहता है
अल्लाह को राजी करूं, उठूं, मैं अल्लाह के सामने जाऊं। हम तो पोस्तियों की तरह, मेजॉरिटी तो सोरी होती है ना, उठती 12 बजे है कमबख्त, उसको क्या पता वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर। शायर ने कहा था, अगला मिसरा भूल गया क्योंकि नबी में रट्टा लगा के याद किया था 9th क्लास में उर्दू अदब में। वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर, देखे तो गश करे अरिनी गोए ओजे तूर। वाह वाह, अब याद आ गया। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उर्दू बर्बाद हो रही है। शायर ने कहा है अरिनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर में कहा था ना अरिनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। तो गोए ओजे तूर, तूर के पहलू से जो आवाज आई थी ना अरिनी, तो वो वाला मंजर, वो रूहानी मंजर होता है वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर। यानी सितारों की छांव के बाद जब सुबह पैदा होती है ना, तो वो कोहे तूर वाला मंजर, रूहानी मंजर पैदा होता है जब कोहे तूर से मूसा अलैहिस्सलाम की अरिनी की आवाज आई थी। इस शायरों का तखय्युल होता है, कोई मेरे पे तौहीन का फतवा ना लगा देना भाई। तो फतवे मार्केट में तौहीन के आजकल बहुत हल्के चल रहे हैं। तो हम अपने बयान की तरफ चलते हैं। तो ये 5 नमाजें अल्लाह ने क्या कर दी मेरे भाई, बोलो। असल तो इबादत इस्लाम में है ही नमाज। असल क्या है, 5 टाइम दिन में। तभी उलमा कहते हैं माफी नहीं होती है, कभी मौत तक चलती रहती है, क्योंकि एक टाइम आता रहता है ना, टाइम आएगा तो नमाज लाजिम होती रहेगी, या तो टाइम रोक लो। हम जब गए थे वहां नॉर्वे में थे ना, तो बहुत लंबी रात थी, तो वहां टाइम रुका हुआ था रात का। तो मगरिब और इशा और फजर में ठीक ठाक फासला होता था। फजर 8:45 बजे हो रही थी सुबह, और इशा मेरा ख्याल है 4:30-5 बजे। तो चूंकि टाइम रुका हुआ था ना, मगरिब के बाद इशा का वक्त, फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, इशा के बाद फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, तो टाइम रुक गया, तो नमाज भी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, देर से पढ़ो आप, तो क्योंकि टाइम चेंज होगा तो हुक्म अल्लाह का नमाज का आपकी तरफ मुतवज्जो। हाँ, जिन इलाकों में 6-6 महीने 3-3 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, वहां फिर हदीस में आता है कि उसमें फिर हदीस में कुछ और है, वो फिर अभी मसला बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये उन जगहों की बात है जहां दुलूके शम्स हो रहा है, सूरज निकलता है और 24 घंटे के अंदर गुरूब हो जाता है, तो वहां फिर नमाजें किस तरह ही पढ़ी जाएंगी, टाइम के साथ अल्लाह ने उसको जोड़ दिया है। अल्लाह ताला के इरशाद है, नबी तुम्हें जो कुछ दे दें वो ले लो, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। पिछली उम्मतों में जो गुमराही आई है, आपको मालूम है अल्लाह ताला ने हमसे पहले भी 2 उम्मतें भी दी हैं जिनको आसमानी किताबें मिली, जिन्होंने दुनिया पे राज किया, दुनिया पे हुकूमत की। पैगंबरों का सिलसिला तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे, उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की, लेकिन उनके बेटे काबिल ने अपने सगे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये कत्ल किसी नज़रियाती खराबी की वजह से नहीं था, बल्कि हसद और ज़ाती दुश्मनी की बेस पे था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, काबिल का उसमें हिस्सा होगा लाजमी, क्योंकि उसने कत्ल की दुनिया में बुनियाद रखी है। जो काम प्रैक्टिकली एक दफ़ा हो जाए तो लोग उस पर जरी हो जाते हैं। पहली दफ़ा किसी काम को करना बहुत मुश्किल होता है, पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो नेकी हो चाहे वो बुराई हो। इसलिए जो नेकी में पहल करता है, नबी ने फरमाया बाद में जितने लोग नेकियां करेंगे उनकी नेकियों में इसका हिस्सा लाजमी होगा, क्योंकि इसने नेकी की बुनियाद डाली है। इसी तरह जो बुराई में पहल करता है, जितने लोग उसको देख के बुराई में मुब्तला होंगे, नस्ल दर नस्ल हर एक की बुराई से कुछ ना कुछ हिस्सा इसको भी जाएगा, इसका भी शेर होगा उसमें, जिसकी इसको क़यामत के दिन सजा मिलेगी। तो काबिल ने हाबील को कत्ल किया, ये नजरियाती खराबी नहीं थी, ये एक अमली खराबी थी। हसद में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, तो भाई से जेलस हुआ और कर दिया उसने ये काम, वही काम जो शैतान ने किया था हसद में। इसलिए हसद बहुत बुरी चीज़ है, खूब समझ लो। मैंने इस पर पूरा भी चंद दिन पहले एक बयान किया था कि जब भी किसी के दिल में किसी के लिए हसद के जज्बात पैदा हो रहे हो ना, आग लग रही हो कि यार ये क्या है, तो तकदीर का अकीदा सोच के सब्र किया करो कि अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह किसी को तरक्की देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, किसी को दौलत देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, किसी को इज्जत देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। अपना खून जलाने से खून जलने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। और दूसरी बात यह कि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी की तरक्की से मिलेगा क्या? मर जाएगा वो थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? मर जाएगा, कहाँ जाएगा वो थोड़े दिनों में? आज जामे तो रशीद के बाद हमें किसी इलाके में जाना था, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, बड़े खूबसूरत घर, बड़ा लग्जरी। तो दोस्त कह रहे थे यार क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है। मैंने कहा जो बिल्डिंग है तो ज़बरदस्त है, लेकिन रहने वाले ज़बरदस्त नहीं है। कोई 50 साल का होगा, कोई 55 साल का, कोई 60 साल का, थोड़े से रह गया टाइम। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंगों का करना क्या है जब बिल्डिंग में रहने वाला उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? आप कह सकते हैं कि वो तो बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे, तो आप भी बिल्डिंग की करते ना। असल में बिल्डिंग की जब तारीफ की जाती है
تو इंसान को हसरत होती है कि काश ऐसी बिल्डिंगें मेरे पास भी होती। वो ये नहीं देखता कि ये बिल्डिंगें पहले किसी और ही के पास थी, आजकल वो कब्रिस्तान में 5-5 फुट की कब्रों में लेटे हुए हैं और कीड़ों ने उनकी कब्रों में राज किया हुआ है। असल में जो मजे बारबेक्यू कीड़े करते हैं ना कब्र के, वो बारबेक्यू हम लोग बकरीद में नहीं करते। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? हमने पूरी जिंदगी इतने तिक्के कबाब नहीं खाए होंगे, बारबेक्यू के वो मजे नहीं लिए होंगे जो कब्र के कीड़ों ने हमारी लाशों से बारबेक्यू करना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मुझे लग रहा है डर गए आप लोग, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे यार। कब्र के कीड़ों को जो इंसान का गोश्त खाने को मिलता है ना, बेहतरीन प्रोटीन, वो जो एंजॉय करते हैं ना डेली, उनका जो बारबेक्यू होता है, जब तक एक जर्रा भी बाकी रहता है ना, वो कीड़े एंजॉय करते हैं। ये दुनिया की 2% की हकीकत है यार, उस पे आदमी फख्र कर रहा है, बहरिया टाउन और डिफेंस और फलाना और ढिमकाना, बेवकूफ़ों वाली बातें, बचकाना, हर घटिया सोच जिसे कहते हैं। मेरे शेख, मेरा तो टॉपिक से मैं हट रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि इंसान के बाहर के कुछ गुनाह होते हैं, कुछ अंदर के गुनाह होते हैं। ऐसा ही है ना, हम लोग कहते हैं ना दिल का बड़ा अच्छा है, चलो चर्स पीता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिल का क्या है भाई? चर्स बाहर का गुनाह है ना, तो और कुछ गुनाह अंदर के होते हैं। अंदर के 3 मशहूर गुनाह हैं, खूब याद रख लें। पहले ज़माने में जब बुज़ुर्गों की तरफ से किसी को खिलाफत मिलती थी, ये लफ्ज़ सुना होगा ना आपने तसव्वुफ़ में कि हज़रत जी फ़लाँ के गद्दी नशीन हैं, फ़लाँ के खलीफा हैं, तो खलीफे का मतलब क्या होता था? पहले ज़माने में इसका मतलब ये होता था कि कोई बुज़ुर्ग वो किसी को इजाज़त देते थे कि तुम भी लोगों को अपने हाथ पे बैत कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर 3 चीज़ें नहीं हैं, 3 बुराइयां नहीं हैं। नंबर 1 शोहरत की लालच नहीं है, नंबर 1 दौलत की हवस नहीं है, नंबर 3 शहवत हद से मुतजाविज नहीं है। इन तीनों को इस्लाम में कहते हैं हुब्बे जाह, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। ये लफ्ज़ याद रहेगा। जब हम कहते हैं बंदा 1 नंबर है, मतलब पता है क्या होता है? शोहरत का भूखा नहीं है। बहुत सारी खराबियां इंसान में पैदा होती हैं जब वो शोहरत का भूखा हो जाता है। जब शोहरत का भूखा होगा तो दूसरे की इज्जत देख के जलेगा भी, क्या ख्याल है, और हर जगह चाहेगा मेरी टांग ऊंची रहे, हर महफिल में बोलेगा ज्यादा। आपने देखा होगा कुछ लोग मजलिस में बैठे होते हैं, आराम से बात सुन रहे होते हैं बड़ों की, कुछ बीच बीच में क्या कर रहे होते हैं? अपना प्रोग्राम चला रहे होते हैं। इनको अपनी टांग ऊंची रखने का शौक होता है। चुप करके सुन लो भाई, ना जी सुनना है ही नहीं, सुनाना ही है हमेशा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये शोहरत के क्या होते हैं? भूखे। लालच होती है इनमें, जाह की लालच, तकब्बुर होता है इनके अंदर, खुद पसंदी होती है, ये अंदर की बीमारी है। दूसरी बड़ी बीमारी है हुब्बे माल, पैसों की लालच। पैसों की मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, नेचुरल है ये, क्योंकि सारे काम दुनिया में किससे होते हैं? मुंह से बोल लिया करो ना, पैसों से होते हैं। विदाउट पैसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो मजबूरी है, पैसों से मोहब्बत क्यों नहीं होगी भाई? लेकिन हवस, ये मोहब्बत से ऊपर की चीज है। हवस बुरी चीज है। हवस का मतलब क्या? जब मोहब्बत होती है जो एतदाल से हो, तो इंसान मेहनत करता है, कमाता है, हलाल की फिक्र करता है, उसको पता है भाई दुनिया का सारा निज़ाम किससे चलता है? पैसों से। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। बाज़ लोग दुनिया की मोहब्बत की ऐसी नफ़ी करते हैं, ये तकल्लुफ़ात इस्लाम में नहीं है, कहते हैं पैसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कर रहे होते हैं, टके की हैसियत नहीं है। उससे कहो ठीक है अपनी तनख्वाह फिर मुझे दे दिया करो। कह रहे थे मेरी नज़र में दौलत की 2 टके की हैसियत नहीं है। तो नहीं है तो फिर जॉब क्यों कर रहा है? सुबह सुबह उठ के 8 बजे ऑफिस क्यों पहुंचता है? वो तारिक भाई बैठे हुए हैं ना, इन्होंने एक वाकया सुनाया था, मुझे याद आ रहा है। वो बैठे हुए, वो गवाह चशमदीद मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि सदर में कोई बुजुर्ग मिले इनको, बड़ी दाढ़ी उनकी, सफेद दाढ़ी और बड़ा नूरानी सा चेहरा। मैं आमिलों के खिलाफ बहुत बोलता हूँ ना, तो इन्होंने, जब मैं मस्जिद में नया नया आया तो मैंने बयान की स्टार्टिंग ही आमिलों को गालियां देने से शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से अब 20 साल हो गए यहाँ मैं टिका हुआ हूँ। आमिल मेरे खिलाफ जादू टोने फलीते पलीते कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आप उनकी गालियां देने की बरकतें आप देखो। तभी किसी का कोई काम अटका हुआ हो ना, तो आमिलों को गालियां दे, अल्लाह की रहमतें उसके इंशाअल्लाह साथ होंगी। अल्लाह को ऐसे लोग महबूब होते हैं जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों को गालियां देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लोगों की जिंदगियां तबाह की है। फिर टॉपिक चेंज हो रहा है फिर। तो इन्होंने सदर में एक सफेद रीश बुजुर्ग देखे। वो बुजुर्ग इन्होंने जाके देखा कि कोई काम अटका हुआ होगा तारिक भाई का। हर आदमी का कोई ना कोई अटका हुआ होता है, ये नहीं अटका हुआ होगा। मुझे पूरा वाकया याद नहीं। उन्होंने बताया कि मैं उस बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने मुझे कोई माचिस की तीली या कोई चीज दी, बोला ये जबान पे रखो। जबान पे रखा, मिस्री बन गई। वो मीठी मिस्री नहीं होती चीनी की तरह, ऐसा ही है ना, ऐसे मुंह में रखा मिस्री। भाई कह रहे, मैंने कहा यार ये तो कोई अजीब ही बुजुर्ग है यार, मुंह में माचिस की तीली रखी है या कोई ढेला रखा है, कोई मिट्टी विट्टी का, वो मिस्री गुड़ ये चीजें बन रहा है। वो कहते हैं मैंने कहा कि मैंने 500 रुपए निकाले, उस जमाने में 500 की बड़ी
वैल्यू थी, ये 95-96 की बात होगी मेरा ख्याल है। तो 500 रुपए उनको दिए, बुजुर्ग ने कहा मिट्टी है मिट्टी। नहीं आई समझ में? तभी तो लोगों को तकल्लुफ वाले लोग बुजुर्ग लगते हैं। तकल्लुफ जो सीधा सीधा चलता है, लोगों को वो बुजुर्ग लगता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं होता, मुझे उस वक्त ये 500 रुपए देते, मैं कहता है थोड़ा सा, कहता है तारिक भाई छोड़ो यार, कह रहे नहीं रखो, शुक्रिया, बहुत अच्छा है यार, अच्छा है ना, और क्या चाहिए, क्या ख्याल है भाई? फ्री फोकट में जब पैसे आ रहे हो और इज्जत के साथ आ रहे हो, जलील होके भी ना आ रहे हो, तो किसको बुरा लगता है पैसा? क्या ख्याल है? कोई बुरा लगता ही है? सबको अच्छा लगता है यार, लेकिन इज्जत के साथ हो, भिखारी बन के ना हो। तो मैं होता तो मैं रख लेता, तो ये मुझे बुजुर्ग समझते? ना ना ना, बुजुर्ग उसी को समझा जाएगा 2 टके की हैस रखो। इन्होंने फौरन, वो बुजुर्ग ने क्या कहा, 500 रुपए वापस लो। इनके दिल में और उस बुजुर्ग का तकद्दुस बैठ गया। लेकिन अल्लाह ने इनको अकल दी थी, इनको लगा कि यार ये जो मैंने ये मुंह में माचिस की तीली रखी और ये मिस्री बन गई, ये कोई ड्रामा हो सकता है, ये ऐसा ना हो कि ये मेरी जेबें खाली कर दे। अल्लाह ने थोड़ी अकल दी थी, ये वहां से हट गए, कोई दूसरी पार्टी आई। अब ये मंजर देख रहे हैं वहां खड़े होकर, दूसरी पार्टी के साथ क्या होता है, वो कोई दूसरा बंदा आया, उसके साथ यही काम किया, उसको वो माचिस की तीली मिस्री लग। ये लोग मिसमरिज्म करते हैं, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। तो लेकिन हर एक का दिमाग कैप्चर नहीं होता। अगर इनको गालियां दोगे फिर नहीं कैप्चर कर सकते। कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर नहीं होता कैप्चर। ये सारे कैप्चर वैप्चर उन्हीं के होते हैं जो इनके रंगों में आ जाते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल करके कह रहा हूं, मैं होता ना, मुझे माचिस की तीली ही लगती। समझ में आ रही है बात? तो अब किसी और को उन्होंने वो बड़ा बहरान, उसने भी 500 रुपए निकाल के दिए। बुजुर्ग ने क्या बोला, मिट्टी है मिट्टी, कोई हैसियत नहीं, रख ले। उसके दिल में और आ गया, यार ये थोड़े पहुंचे हुए नहीं। अगर वो वाकई बुजुर्ग होता ना, वो कहता था चलो यार फ्री फोकट में हलाल आमदन किसी आ रही है, कोई अपनी खुशी से दे रहा है, तो चलो यार ले लो, क्या ख्याल, बच्चों को अच्छा खिला देंगे, खुद नहीं खाना, बच्चों को खिला दे यार तू। लेकिन ड्रामेबाज आदमी लोगों को पसंद है, तकल्लुफ वाला आदमी। तो वो कहने लगा कि भाई मिट्टी है मिट्टी। अब इन साहब ने कहा कि हजरत आप जो है, हमारे घर में हालात बड़े खराब चल रहे हैं। आपको पता है मुसलमान कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसके घर में हालात ठीक चल रहे हो। आजकल सब मुसलमानों के मुंह पे एक ही जुमला है, घर में हालात। सुबह पराठे खा रहा होगा 2-6 अंडों के साथ, मक्खन भी होगा, बलाई भी होगा साथ में, और दोपहर को खाने के लिए 20 किस्म की चीजें होंगी, रात को भी, शाम को चाय के साथ पापे भी, समोसे भी, बिस्किट भी, लेकिन हालात फिर भी ठीक। ये नाशुक्री का वबाल है जो लोगों के चेहरों पे आता है, अल्लाह बचाए। खैर, तो वो उसने कहा कि हजरत हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। क्या मसला है बेटा, बताओ। जी गुर्बत बहुत है। क्या चल रही है घर में? गुर्बत। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, कुछ अमलियात करूंगा, तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, डबल। तारिक भाई कहते हैं मैंने उस बंदे का नंबर ले लिया था ना आपने, उसका है नंबर नहीं लिया, फिर बहरहाल किसी तरह से राब्ते में रहे उससे। अब वो बंदा इन बुजुर्ग को ले गया घर। हजरत जी को कहां ले गया? घर। हजरत जी का काम है वहां पर अमलियात करनी है हजरत जी ने, और पैसा बरसने लगेगा। तो हजरत जी ने ये किया, हजरत जी ने फरमाया कि जितनी भी घर की लेडीज हैं वो सारा सोना लाके यहां रखें इस रुमाल में। जितना पैसा है, चादर बिछाई हजरत जी ने, सारा पैसा यहां लाके रखें, सारी चूड़ियां, बालियां, शक नहीं करना हजरत जी पे, सब कुछ यहां लाके रख दें, और मैं उस पर अमल पढ़ूंगा, वो सारा क्या हो जाएगा, डबल। अमल पढ़ूंगा और सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने बेवकूफों की दुनिया में कमी रखी नहीं है। और हजरत जी ने पहले डरा दिया कि एतमाद करना, ऐसा ना हो कि 2-4 बालियां छुपा के रख दो, तो ये फिर बेतमादी पे ये चीजें, ये अकीदत, जब तक अकीदत नहीं होगी ये पैसा डबल नहीं होगा। ट्रस्ट, ये सारे चीजें किस पर चलती हैं? ट्रस्ट पे चलती हैं। जनाब सब कुछ ला के रख दिया गया, और उसने कहा खवातीन भी आ जाएं, पर्दे में बुर्का पहन के बैठ जाए। सारी खवातीन पर्दे में बुर्का पहन के बैठ गई, और लाइट बुझा दी, और सबको बोला मुंह नीचे करके ये वाली तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। और कोई आधे घंटे से पहले, आधा या पौना घंटा जो भी उसके टाइम था, कोई सर उठा के नहीं देखे बस, क्योंकि अमल उल्टा हो जाएगा इससे। अमल क्या हो जाएगा? उल्टा। फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, उल्टा अमल ना हो जाए। वो सारे मुसरंडों की तरह खवातीन भी मर्द भी मुंह नीचे करके बत्ती बुझा के बैठे हुए अमलियात कर रहे हैं। सब बड़े आराम से ना सारा सामान लपेटा, टाटा बाय बाय करके निकल लिए पतली गली से। कोई बुला लिया होगा, कोई रक्शे वाला, कोई टैक्सी वाला, बाहर जाके शायद दाढ़ी वाड़ी भी उतार दी होगी, वल्लाहु आलम। वो रोना पीटना शुरू, और आधे घंटे तक वो यूं मुंह ही करके बैठे हुए। मुंह उठा लिया तो ऐसा ना हो कि उल्टा ना अमल हो जाए। काफी देर के बाद जाके उन लोगों ने जब आंख खोली और कोनियां मारी है, भाई क्या हो रहा है ये शार्ट मार्केट से। खैर, तो मैं ये कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं पैसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसा नहीं है मेरे भाई। कुरान के अल्फाज हैं कि यतीमों का माल हिफाजत से रखो, जअलल्लाहु लकुम क़िवामा, जअलल्लाहु लकुम क़ियामा,
क्योंकि इसी माल से तुम्हारी जिंदगी कायम है। कितने अजीब अल्फाज हैं कुरान के। इसलिए माल की हिफाजत करो यतीम के कि माल से इंसान की जिंदगी कायम है। माल नहीं है तो खाएगा कहां से, पहनेगा कहां से, रिश्ता कैसे होगा, बच्चों के खर्चे, बीसियों किस्म के मसाइल हैं। इसलिए कुरान ने कहा कि जैसे अपने माल की हिफाजत करते हो, यतीम के माल की इससे बढ़ के हिफाजत करो। क्योंकि हो सकता है कोई सूफी कहे कि माल की हिफाजत की क्या जरूरत है, यतीम के खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है, लिहाजा फिलहाल ये माल मैं खा जाता हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, उसकी जिंदगी किससे सीधी होगी? उस पैसे से जो उसका बाप छोड़ के गया। हिफाजत करो, जब बड़ा हो जाए उसके हवाले करो। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ये कहा है कि माल से इंसान की जिंदगी बोलो जुड़ी हुई है। तो जो चीज हमारी जरूरत है, अल्लाह उससे मोहब्बत से हमें मना करेंगे? बोलो ना, नहीं। तो जब शरीयत में कहा जाता है ना माल की मोहब्बत ना हो, तो यहां मोहब्बत से मुराद है एतदाल से बड़ी हुई मोहब्बत। एतदाल से बड़ी हुई मोहब्बत कि उसी को अपना बाप बना लो, सब कुछ उसी को, और थोड़ा सा माली नुकसान हुआ तो डिप्रेशन में जा रहे हो। भाई जितना दुनिया में रहना है इतनी मोहब्बत करो। रहना है 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, इससे ज्यादा थोड़ी रहना है। और हमारी जरूरत कितनी है? सुबह शाम 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने को जगह मिल जाए, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से पाक हो। तो नबी ने फरमाया जिसको ये 3 नेमतें मिल जाएं, हदीस का मफहूम है, तो गोया अल्लाह ने सारी दुनिया की दौलत समेट के उसको दे दी है। तो बस वो अब खुश जिंदगी गुजारे। इजाफी आ रहा है खुश हो जाए, नहीं आ रहा टेंशन ना ले। तो ये है एतदाल। तो जब भी पुराने जमाने में अहलुल्लाह की तरफ से किसी को खिलाफत मिलती थी तो उसमें 3 चीजें देखी जाती थी कि इस शख्स में जिसको हम अपना नाइब बना रहे हैं, पहली चीज इसमें हुब्बे जाह ना हो। समझ में आ रही है बात? हर जगह बड़ा बनने का शौक ना हो, तकब्बुर ना हो, खुद पसंदी। खुद पसंदी पता है ना किसे कहते हैं? बाज दफा इंसान अपने बारे में अपने आप को जरूरत से ज्यादा अहम समझना शुरू कर देता है। इतना वो होता नहीं है। बाज लोगों को अपने बारे में वहम होता है मैं बहुत ज़हीन हूं, हालांकि इतने होते नहीं है वो। बाज दफा अपने बारे में वहम मैं बहुत खूबसूरत हूं, हालांकि इतने होते नहीं है। फिर लोगों ने चढ़ा चढ़ा के और पागल कर दिया होता है उनको। इधर से खोपड़ी क्या हो जाती है उनकी? आउट। बाज दफा वो समझ रहे होते हैं कि मेरा जिंदा रहना इस्लाम में सबसे ज्यादा जरूरी है, कौम के लिए मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि वो हलाक हो जाते हैं, कौम फिर भी बेहतरीन तरीके से चल रही होती है। तो अपने बारे में खुशफहमियों में कुछ लोग मुब्तला हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? खुद पसंदी, जिसको अरबी में कहते हैं उजब। ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। शैतान में ये खुद पसंदी थी या नहीं थी? वो समझने लगा था कि मेरी वैल्यू अल्लाह की नजर में इतनी ज्यादा हो गई है, मैं इतना मुकर्रब बन चुका हूं कि मैं अगर आदम को सजदा नहीं करूंगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने 2 मिनट में उसको बता दिया कि तू है मेरा बंदा, जब मैं कह रहा हूं सजदा कर तो तुझे करना पड़ेगा, नहीं करेगा निकल यहां से। तभी तो उसको गुस्सा आया कि ये तो मेरे लिए, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये सजा मिलेगी मुझे। तो इससे पता चलता है शैतान खुद पसंदी में मुब्तला था या नहीं था? यकीनन मुब्तला था। तो बाज़ दफा इंसान अपने बारे में बिलावजह वो खुशफहमियों में मुब्तला हो जाता है। तो 2 चीजें, एक हुब्बे जा, ये नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि हम में से किसी में अगर है तो खत्म करें इसको। ये सिर्फ बुजुर्ग नहीं, नेक बनने के लिए भी जरूरी है, सही इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। और ये बीमारियां इंसान को घिन की तरह खा जाती हैं। तकब्बुर, हुब्बे माल यानी पैसों की लालच और हवस, सारा दिन पागलों की तरह डिप्रेशन में जाता है दूसरों का पैसा देख देख के। और तीसरी चीज है हुब्बे बाह। बाह किसे कहते हैं? हर मर्द और औरत में अल्लाह ने शहवत रखी है, मर्द की औरत की तरफ, औरत की मर्द की तरफ। ये अगर बिल्कुल ही ना हो तो भी गलत है। क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने रखी है, किसी हिकमत से रखी है। और अगर ये हद से बढ़ जाए, जैसे कि आजकल बड़ी हुई है जिसको ठरक कहा जाता है, इस बड़ी हुई शहवत को क्या कहा जाता है? ठरक। बीवी में और दूसरों की बीवियों में कोई फर्क ही नहीं करता। जब कोई औरत गुजरेगी ठरकियों की तरह देखना शुरू कर देगा। जो आजकल मार्केट में, मुझे खवातीन अपने दिलों की बातें भी बताती हैं। जब मैं फैमिलियों को टाइम देता हूं ना, वो बता देती है मेरे सामने। हस्बैंड होते हैं, उनके शौहर होते हैं, कि मैं घर बाजार से जाती हूँ, वो शौहर की शिकायत कर रही है ना, मेरे शौहर शॉपिंग नहीं करते, मुझे कहते हैं करो। औरतें बताती हैं कि बुरके में भी हो ना लड़की, जवान लड़की, जरा एक आंख भी खुली हुई है, उसने 1/4 खुली हुई हो आंख, कि थोड़ा सा नजर तो आए, उस 1/4 आंख को ये देख रहे होते हैं आदमी। उसमें सूफी भी हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, पगड़ी वाले भी हैं, हाजी साहब भी हैं जो नए नए हज करके आए हुए हैं। इतनी ठरक है। अबे भाई, उसने पूरी बॉडी, अच्छा एक औरत ने बताया कि मेरा पूरा जिस्म में कवर करती हूं, जरा सा हाथ कहीं खुल जाए ना, थोड़ा सा मुंह साफ करने के लिए, उस हाथ को मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं लोग। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। बंदा यानी उस एंगल पे खड़ा हुआ है ना, एकदम घूम जाता है उधर देखने के लिए। तो ये क्या कहलाता है ये अमल? इससे ना आदमी खुद अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहा है।
जिन लोगों की ये आदत होती है ना, वो सुकून की जिंदगी में होंगे? बोलो ना। हर वक्त दिमाग पे क्या सवार है? गोबर भरा हुआ है दिमाग में, हर वक्त गोबर भरा हुआ है। कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी उसको देख रहा है। वो मैं वाकया सुनाता हूं ना, कुछ लोग हज करके आए, उन्होंने कहा हमने सबने तौबा ताइब कर ली है भाई, अब शरीफ बन के जिंदगी गुजारो। नजर नीची, सारे हाजी पाजी ना उस बस में बैठे हुए थे। लिहाजा किसी औरत पे नजर पड़े ना तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह। एक हाजी की नजर किसी लड़की पे पड़ी, अस्तगफिरुल्लाह। सब कह रहे हैं कहां है, कहां है, कहां है। सब क्या कह रहे हैं? तो ये क्या, ये वैसे भी गैर अखलाकी, अगर कोई इस्लाम को ना भी मानता हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, गैर अखलाकी है या नहीं है? क्या ख्याल है? इसी तरह बाज लोगों की शहवत इतनी बढ़ जाती है, लड़कों की तरफ उनकी तबीयत माइल हो रही है, लड़कों का इश्क में मुब्तला हो रहे हैं। कोई खूबसूरत बच्चा नजर आया, उसकी तरफ तबीयत माइल हो रही है। ये नेचुरल हो सकता है? ये बोलो ना, ये नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ये हवस हद से, इसको कहते हैं हुब्बे बाह। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? हुब्बे बाह। देखो, पैगंबरों से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं होता, पैगंबरों से ज्यादा मर्दानगी किसी में नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम को जब दो लड़कियों ने, जवान लड़कियां थीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी पिलाया है और वो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर तक लेकर गई हैं कि हमारे बाप आपको उजरत देना चाहते हैं। हजरत मूसा की नजरें कहां थीं? नीचे। एक बार भी उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। हालांकि अजनबी हैं, मुसाफिर हैं। जब इंसान अपने मुल्क से बाहर होता है तो फिर इज्जत का भी उसको खौफ नहीं होता। अपने मुल्क में तो ये होता है ये करूंगा पकड़ा ना जाऊं, बाहर चला गया तो कौन देखने वाला है? मूसा कलीमुल्लाह मुसाफिर हैं, लड़कियों की मदद की है और वो अपने बाप के घर लेकर गई हैं कि हमारे वालिद आपको उजरत देना चाहते हैं, और जाके अपने बाप के सामने तारीफ क्या की है? इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन। ऐ हमारे अब्बा, ये ताकतवर भी है और अमानतदार है। कैरेक्टर का एक नंबर है। अमानतदार का आज की जबान में आसान तर्जमा क्या होगा? कैरेक्टर में। बोलो ना यार, मैं भी तो बोल रहा हूं। इनका कैरेक्टर, इतनी जल्दी कैरेक्टर का अंदाजा कैसे लगा लिया भाई? इतनी जल्दी कैरेक्टर का अंदाजा कैसे लगा लिया? उनको पता था, वो लड़कियां थी, घर के बाहर के काम मजबूरी में करती थी। उन्होंने बताया हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए हमें घर के बाहर के काम करने पड़ते हैं। उन्हें पता था कि हमने मर्दों की आंखें देखी है, कैसी हवस होती है मर्दों की आंखों में। अपनी बेटियों के लिए कभी भी इंसान पसंद नहीं करता उस पर लोग गलत नजरें डालें। दूसरों की बेटियों को देखने में बहुत शेर होता है, बहुत शेर होता है। तो उन लड़कियों ने देख लिया कि आज तक हमने कोई इतना खूबसूरत, जवान, ताकतवर ऐसा नहीं देखा जिसने इतनी देर तक एक बार भी हमारी तरफ नजर उठा के ना देखा हो। तो ये क्या कहलाता है? ये अमल कैरेक्टर में एक नंबर ही। आज कहां मिलते हैं ऐसे लोग? लोग कहते हैं अंग्रेज ऐसे होते हैं, वो इसलिए कि वो नाइट क्लबों में फुस हो चुके होते हैं। सही है ना? वो क्या होते हैं? फुस। वरना अंग्रेज से बड़ा ठरकी इस कायनात में कोई नहीं है। वो चंद दिन औरत के बगैर गुजार ही नहीं सकते, नामुमकिनात में से है। तभी तो फिर वो आगे होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं। तो वो उनके लिए तो नामुमकिनात में से है। बात यह कि आप जवान हो, ताकतवर हो, पावरफुल हो, शहवत से भरे हुए हो, फिर भी आपकी नजर किसी की बहू, बहन, बेटी की तरफ ना उठे। आप अमानत में खयानत ना करो। समझ में आ रही बात? यही मूसा अलैहिस्सलाम है, जब वहां गए उनके वालिद ने कहा कि इन बेटियों में से एक बेटी का मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। कहा ना, अब ये निकाह की ऑफर है। अब अगर कहते नहीं मुझे बिल्कुल निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये दूसरी तरफ बेइतदाली होती है। अल्लाह ने मर्द बनाया है, औरत की तरफ रगबत रखी है ताकि दोनों का मिलाप हो, मियां बीवी में मोहब्बत हो, औलाद हो। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर की, फौरन फरमाया ज़ालिका बैनी व बैनिक, कबूल है। आई बात समझ में? नहीं आ रही समझ में बात? तो मेरे भाई, हम यही चाहते हैं। हमारे यहाँ जो सूफी टाइप के लोग हैं वो कमबख्त हलाल की तरफ भी नहीं आते। कहते हैं एक्चुअली अल्लाह अल्लाह करो बैठ के, क्या शादी ब्याह की शादी लगा के रखी हुई है इसने, क्या लोगों को, नौजवानों को खराब करके रखा हुआ है इसने, क्या 15-15 16-16 साल के लौंडे लपाड़ों को बोल रहा होता है शादी करो, और क्या क्या माहौल खराब कर दिया इसने। और भाई, आप शरीयत की बात आधी ले रहे हो, आधी नहीं ले रहे। इस्लाम में ये भी है कि हराम से बचो, लेकिन इस्लाम में ये भी है कि इन औरतों को अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया है? फारिग बैठने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए पैदा किया है। हमारे जामिया रशीद में कुलियत शरिया एक शोबा है जहां बैचलर लड़के आते हैं। कौन से? बैचलर या मास्टर्स लड़के आते हैं। अब वो जब लड़के आते हैं तो 4 साल के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप में किस किस की शादी हुई है? तो वो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि अभी हमारा फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, मास्टर्स के बाद भी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी हम 4 साल यहां आलिम का कोर्स करेंगे। जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो होनहार होने की अलामत यह कि एक
ایک سمجھدار انسان ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ شادی بیاہ کی طرف آتا ہے. دلیل کتنی زبردست ہے نا کہ بھائی اب پہلے ایکچولی جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں تو پوری کر لیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایکچولی تم جن لڑکیوں سے نکاح کرتے ان کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو, ان کو بھی ماسٹرز کراؤ, کیا خیال ہے؟ اور ابھی تم جس عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے وہ 20-22 سال کی ہوں گی, کم بختوں جب فارغ ہونے کے بعد کرو گے وہ تو 26, 27, 28, کوئی 30, کوئی 35, کوئی 36 کی ہو چکی ہوگی, جس سے تم کرو گے ہی نہیں. چاہیے تو تمہیں وہی 20-22 سال کی, خود تم ہو جاؤ بھلے 35 سال کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ان لڑکیوں کو ہو رہا ہے جس سے تم دیر سے نکاح کرو گے, ان کی عمریں نکل رہی ہیں. میں نے کہا یہ کرنے کا کام نہیں, سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہوں گے, شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, پڑھائی بھی ہوگی. نہیں یار یہ سمجھ بات تو پھر وہی تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں, پھر مجھے افسوس ہوتا ہے. سارے کام جو ساتھ ساتھ کرتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں ہفتے سے پڑھوں گا. ابے بھائی ہم تو اسکول میں یہی کہتے تھے, ہم ہفتے سے, وہ ہفتہ کبھی آتا ہے جو کہتے ہیں میں ہفتے کے دن سے 5 نمازیں شروع کروں گا, قیامت آ جائے گی ان کی زندگی میں وہ ہفتہ نہیں آئے. جو آج سے شروع کرے گا نا ابھی سے وہی ہوگا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تبلیغ والے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, پہلے پاکستان میں تو سب کو مسلمان کر لیں. میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں نا پہلے یہ پھر وہ کچھ بھی نہیں, جو دین کی دعوت قبول کر لے پاکستان میں کر لے پاکستانی, جاپان میں کر لے وہ آ جائے, امریکہ میں کر لے امریکہ, ساری دنیا میں ایک ہی ساتھ کام ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی کمانا بھی ایک ساتھ ہے, شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, پڑھائی بھی ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چلے گا. اور جس نے کہا نا پہلے یہ پھر یہ, تو ویسے میرے دوست احباب ہیں الحمدللہ 50 کے ہو گئے, ابھی تک کمانا شروع نہیں کیا, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے وہ, اور اب اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کمانے لگیں اور کوئی ان کو مناسب رشتہ مل جائے. ایسے بھی لوگ ہیں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں میں, ایسے بھی ہیں. میں ایک جانتا ہوں ایک صاحب کو جو ماشاءاللہ ان کے ذوق تو بڑے تھے, اب زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر رہا ہوں. اتنے رنگین مزاج تھے جس کو آج کل ٹھرکی کہا جاتا ہے, آپ یوں سمجھ لیں. ان کا معیار اتنا اونچا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ان کو چاہیے تھی کہ آپ کی سوچ جہاں خوبصورتی میں ختم ہوتی وہاں سے ان کی سوچ شروع. اس چکر میں رشتے ریجیکٹ, اور پھر یہ بھی کہ میرا جب یہ بزنس ہوگا, میرا یہ کاروبار ہوگا. میں نے بھی ان کو سمجھایا, میں نے کہا کہ چھوڑو یار ابھی فی الحال جو جاب ہے ٹوٹے پھوٹے پیسے اسی میں, نہ پہلے اسٹیبل ہونے دو, پھر یہ. اس کے بعد اب ان کی جب شادی ہوئی ہے, ان کی عمر ماشاءاللہ, یہ میں واقعہ بھی سنا رہا ہوں 25 سال پرانا, 25 سال سے ان کی شادی کی فکر ہو رہی تھی. اب الحمدللہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو آدمی کہتا ہے تھوڑا سا ٹھہر جاتے تو اور اچھا ہوتا. یعنی ان کو جو رشتہ ملا ہے نا, جو رشتہ, کیونکہ ان کی عمر بھی صاحب کی زیادہ ہو گئی, پیسے ابھی تک آئے نہیں ہیں, یا تو کوئی جوان دیکھ کے آپ کو کرتا ہے یا پیسہ دے کے کرتا ہے, نہ پیسہ ہے اور نہ جوانی باقی رہی. تو وہ جو بہرحال اللہ ان کے جوڑے کو کامیاب کرے, محبت پیدا کرے میاں بیوی میں. لیکن مجھے خیال یہ آتا ہے کہ مزاج تو آپ کا یہ تھا کہ کوئی ہیروئن ملے آپ کو, تو پھر ثواب کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ ذہن میں رکھو, سارے کام ایک ساتھ ہوتے ہیں. میں اپنی آپ کو معمول بتاؤں, میں جب یہ سوچتا ہوں نا پہلے یہ تحقیق میری مکمل ہو جائے پھر میں رننگ اسٹارٹ کروں گا, نہیں ہوتا. کاموں کے بیچ میں سے ٹائم نکال کے دوڑ لو یا جم چلے جاؤ, ہو جائے گا. جب میں نے یہ سوچا پہلے یہ پھر یہ, نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں, یہ خوب سمجھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا, جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. 3 چیزیں ہیں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. ان تینوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو اس میں میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حب باہ بھی گھٹیا بیماری, حب جاہ بھی بری بیماری. یعنی اس کا علاج بہت مشکل ہے. کسی کو مشہور ہونے کا شوق ہو جائے نا, تصوف میں کہا جاتا ہے سب سے مشکل علاج اس شخص کا ہے, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. جب شوق ہو جائے نا میری ٹانگ ہر جگہ اونچی رہے, اس میں تواضع پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو علاج مشکل ہونے کے اعتبار سے سب سے مشکل حب جاہ ہے. حب باہ بھی آسان ہے, ٹھرکیوں کا علاج بھی آسان ہے اگر وہ کرنا چاہیں. کم وقت چاہتے نہیں ہیں نا, اس لیے علاج نہیں ہوتا. چاہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے چند دنوں میں. جو حب باہ کے مریض ہیں نا ان کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کو ٹھرک ہر وقت لڑکیوں کو جھانک رہا ہے, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پہ توکل کر کے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جس کو یہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی نا, یہاں سے کوئی خاتون گزرتی ہے وہاں سے گھر تک پہنچا کے آتا ہے, وہ نظر نیچی نہیں ہو رہی اس سے. کوئی ٹک ٹاک پہ آ گیا بس اسی کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے. تو وہ کس سے بیعت ہو جائے؟ حضرت فیروز میمن صاحب سے. پھر بھی اگر اس کی ٹھرک صحیح نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ کائنات میں اب کوئی اس کی ٹھرک کو ٹھیک, یا تو وہ بیعت ہونے میں مخلص نہیں ہے, علاج چاہتا ہی نہیں ہے. تو
तो हमारे हजरत फरमाया करते थे कि हुब्बे बाह का इलाज भी आसान है, खास तौर पे जब निकाह बिका हो जाता है तो भी इंसान को बहुत फर्क पड़ जाता है, जब हलाल मिल जाता है उसको तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है उसकी जिंदगी में। और दूसरी बात, हुब्बे माल का इलाज भी आसान है। सबसे मुश्किल इलाज किसका है? बोलो हुब्बे जा, ये जो मशहूर होने का शौक और मेरी टांग हर जगह, ये बहुत मुश्किल इलाज है। काश इसलिए भी मुश्किल है कि ऐसा बीमार अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद पसंदी में मुब्तला है ना, वो तो समझ रहा है मैं हूं इस काबिल कि मुझे इज्जत दी जाए, हर जगह मेरी बात रखी जाए, वो तो अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है, इसलिए इलाज इसका सबसे मुश्किल है। लेकिन फरमाया करते थे घटिया बीमारी जो सबसे ज्यादा है ना, वो हुब्बे माल है। देखो, एक आदमी को कैंसर हो गया, इलाज मुश्किल है या नहीं है? बल्कि बाज दफा तो ला इलाज होता है। एक को बवासीर हो गया, इसका इलाज कैंसर से आसान है या नहीं है? बोलो ना, आसान है। लेकिन घटिया बीमारी कौन सी है? बोलो, बवासीर। बताते हुए शर्म आएगी, क्या ख्याल है, बुरा लगेगा, इलाज में भी आदमी बस छुपाता ही ये बीमारी, कुछ और कह देता है मुझे कब्ज है, जरा बैठा नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह, घुमा देगा बात को। तो इससे पता चलता है बाज बीमारियों का इलाज मुश्किल तो होता है, लेकिन वो घटिया नहीं समझी जाती, उससे इंसान की इज्जत नहीं जाती है। शुगर की बीमारी है, ये भी ज्यादा, बवासीर से तो ज्यादा खतरनाक है ना, बवासीर तो इलाज हो जाता है। अच्छा, बवासीर के इलाज हकीम लोग ज्यादा अच्छा कर लेते हैं डॉक्टरों से, इसके एक्सपर्ट हकीम होते हैं। हमारे किसी दूर के जानने वाले को ये बवासीर की बीमारी हुई थी, डॉक्टरों से इलाज करा करा के थक गए। एक हकीम थे, यहाँ बैठा करते थे, उन्होंने टक करके फिटफाड़ बना दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई, क्योंकि वजह उसकी बीमारी पुरानी है ना, तो जो पुरानी बीमारियां सदियों से चली आ रही हैं उसमें हकीम तजर्बे कर करके बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो बाज़ दफा कर देते हैं इलाज। डॉक्टर नहीं मानते इस बात को, लेकिन वो हकीम कर देता है। लेकिन हकीम एक नंबर हो, कोई उल्टा सीधा मिल गया तो बवासीर के साथ भी कुछ हो जाएगा। अब सोचो क्या हो सकता है। खैर, तो घटिया बीमारी क्या है? हुब्बे जाह का इलाज मुश्किल है, हुब्बे बाह का इलाज आसान है। ये भी घटिया बीमारी है, लेकिन हजरत फरमाते थे सबसे ज्यादा जो घटिया बीमारी है ना इंसान के चेहरे पे बदनुमा दाग, वो हुब्बे माल है, पैसों की लालच। नहीं आई समझ में बात? क्योंकि ये शहवत की ठरक भी वक्ती होती है और किसी हद तक नेचुरल भी है, किसी हद तक। भाई मर्द को अल्लाह ने औरत की तरफ रगबत रखी है। का ये जो पैसों की मोहब्बत है ना, ये इंसान के जहनी तौर पर घटिया होने की अलामत। अब मैं इस बात को जरा मिसाल से समझाता हूं। आप कहोगे यार क्यों नहीं है यार, पैसे से जब सब कुछ होता है तो क्या? भाई दुनिया है मुसाफिर खाना, सबको पता है, बहुत थोड़े दिन के लिए आए हैं यहां पे और सुबह शाम जनाजे देख रहे हैं। तो ये बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन उनके लिए जिनको 1000 साल की उम्रें अल्लाह ने दी हैं, 50-55 के हिसाब से 1000 गज के बंगले की 2 टके की हैसियत नहीं है। तो खिलौने हैं, तो खिलौनों से बच्चे तो खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों की सोच क्या होती है? घटिया। जिनका ज़ौक़े नजर बुलंद होता है वो मिट्टी के खिलौनों से दिल नहीं बहलाते। वो सुबह शाम मौत की खबरें देख रहे होते हैं, ओ फला बिल्डर जिसने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अपार्टमेंट बनाते हैं ना बड़े बड़े बिल्डर्स, हम तरस रहे होते हैं काश इस अपार्टमेंट में मुझे एक फ्लैट मिल जाए। गरीब आदमी तो ये तरस रहा होता है ना, मैं गरीब नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं मैं, काश इस अपार्टमेंट में मुझे, बोलो, एक फ्लैट मिल जाए, काश ये मिल जाए, काश 2 फ्लैट मेरे नाम के निकल आए, भाई 2 प्लॉट निकल आए, खुशी से पागल हो रहा है। थोड़े दिन में इत्तला आती है वो बिल्डर का मालिक हार्ट अटैक से, वो जो बिल्डर था ना, बिल्डिंग का मालिक हार्ट अटैक से निकल लिया। इबरत नहीं होती कि अबे जिसके सारे अपार्टमेंट थे वो निकल लिया और बगैर बताए निकल लिया। मैं जानकर गलत उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कहना ये चाहिए निकल गया। फसी उर्दू ये है कि वो तशरीफ ले गए। इतने बड़े बिल्डर, हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए कूच कर गए, कहना तो ये चाहिए ना। लेकिन मैं कह रहा हूं पतली गली से निकल लिया, क्योंकि जिस स्टाइल से वो निकलता है उस पर ये तशरीफ के लफ्ज़ फिट ही नहीं हो रहे। भाई देखो, तुम्हें किसी को अपने घर से निकालना हो ना जा रहा हो, तो फिर ये नहीं कहा जाता तशरीफ ले जाइए, उसको पतली गली से निकल, यहां से फौरन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। फिर ये नहीं बोलो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, उसको निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं निकलते? बोलते हैं। तो फरिश्ते जिस हिसाब से इंसान को मार्केट से शार्ट करते हैं ना, तो वो ऐसा मंजर नहीं होता कि अब आप दुनिया से जाने वाले हैं, अब आप आराम से जरा लेट जाएं और जितने अपने फ्लैट हैं जरा इनका हिसाब व किताब क्लियर कर लें, और ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मजीद आपके बच्चों में किसके हवाले कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वहां से कब्र से फरिश्ते आए हुए और रिसीविंग के लिए, फिर हम फरिश्तों के हवाले कर रहे हो ये आपकी अमानत। ना 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 मेरे भाई, ऐसे निकलता है। वो खुद भी कहता है यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो क्या कह रहा होता है?
بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی نکل سکتا ہے انسان, اور سارے ایسے ہی جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں کسی ریلیٹو سے ملنے گیا, ان کو کینسر تھا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ 1.5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. تو ہم بھی چلے گئے, ہم نے کہا چلو, بڑے اللہ نے ان کو حوصلہ دیا تھا. حالانکہ ڈاکٹروں نے تو 6 مہینے یا سال کا ٹائم دیا تھا. کیموتھراپی کے لیے گئے ہیں, واپس لاش آئی, ان کی لاش آئی ہے واپس. اب سب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بولا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے, کم از کم ہمیں یہ اندازہ تھا 6 مہینے سال تو ہوگا, اور جوان آدمی. ڈاکٹر نے کہا وہ پینک اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر, کیونکہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی تو وہ نہیں برداشت کیا انہوں نے. کووڈ میں دیکھ لو, کووڈ میں نا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ مرے, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کیسے جوان جوان تگڑے تگڑے لوگ نکلے ہیں. ایک کیس ہمارے سامنے آیا, ماں باپ کو اور بیٹے کو تینوں کو کووڈ ہوا, ماں باپ بچ گئے, بیٹا نکل لیا, حالانکہ وہ جوان تھا, اس کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط تھا, لیکن نکل گیا وہ. تو ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں موت کے اتنی. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبرستان جایا کرو, یہ حکم ہے, فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. فرمایا قبرستان جاؤ گے نا, بلڈنگیں تو دیکھ رہے ہو صبح شام, حیدری کی اور دبئی کی اور ایمریٹس کی, امارات کی بلڈنگیں اور ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے, جا کے قبرستان جا کے دیکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ گے تو اس دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. بڑے بڑے بنگلے ہیں بھائی, 2 ٹکے کی اوقات رہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک کرسچن بندہ تھا, اس کا جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے موت سے 2-4 دن پہلے, یعنی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ 2-4 دن کے مہمان ہیں. بعض دفعہ کڈنی فیل ہو جاتا ہے نا, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جانے والے ہیں. تو اس نے آرڈر کیا, اپنے بچوں کو بلایا اور بولا میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ خریدو فوراً. بہت کروڑ پتی آدمی تھا, اور میری ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی. ڈیڈ باڈی کہاں سے نکلے گی؟ بڑے گھر سے. اس کا پلان تھا بڑا گھر بنانے کا. پلان کیا تھا؟ گھر ذرا میں بڑا بناؤں. وہ بنا نہیں پایا زندگی میں, تو موت کا وقت آ گیا. تو بچوں کو بلا کے وصیت کر رہا ہے کہ بھائی ابھی مرنے میں ٹائم ہے, جلدی سے کوئی 1000 گز کا بنگلہ پکڑو, کیونکہ ایک ویژن تھا نا کہ میں بڑا بنگلہ بنا کے جاؤں گا. تو میری میت کہاں سے اٹھے گی؟ اس بڑے بنگلے سے. پھر آگے کہنے لگا کہ میرے 2 دوست احباب تھے ٹکے ٹکے کے, وہ 1000 گز کے بنگلے بنا چکے ہیں, تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری لاش یہاں سے اٹھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ابے جب تو جا رہا ہے وہ کیڑوں نہیں کھانا ہے تو جہاں وہاں سے نکل یا یہاں سے نکل. لیکن جب انسان کے پاس وحی کی ہدایت نہیں ہوتی, پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہوتی, تو خدا کی قسم بڑے بڑے ذہین لوگوں کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. یقین نہ آئے جا کے باہر دنیا میں دیکھ لو, باہر کی دنیا میں دیکھ لو نا, حشر نشر کیا کیا ان کم بختوں نے اپنا. ایک طرف سائنسی ایجادات کی بھرمار ہے, دوسری طرف قانون ایسے بنا رہے ہیں, انسان کہتا ہے میں سر دیوار سے جا کے ماروں, ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو گے, اللہ کی مانو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ صحیح اور غلط کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دے گا. جب تک خدا کو کوئی نہیں مانتا, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, اس کی کھوپڑی میں یہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. میں ایک کنٹری میں گیا باہر, میں نے نمونہ دیکھا وہاں پہ. کیا دیکھا؟ کنٹری کا نام نہیں لوں گا, پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. اس کنٹری کا بھی جو سب سے ترقی یافتہ شہر تھا نا, وہاں جانا ہوا میرا. یعنی دنیا میں ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے اس جگہ کو, اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو ایسے نمونے میں نے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھے وہاں پہ. یعنی ہے آدمی پورا مرد ہے, لڑکیوں والی پینٹ پہنی ہوئی ہے, سینڈل پہنی ہوئی ہے, پوری شیو نظر آ رہی ہے اس کی داڑھی, اور چل رہا ہے کیسے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے سینڈل پہن کے. لیکن لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ ایز یو وش, اگر آپ کو یہ لائف پسند ہے. اس کو وہ آزادی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا حشر ہوگا اس کا یار, عزت محفوظ رہے گی اس کی. خیر, اس کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بڑی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی عقل مند قوم دنیا میں کتنی ترقی کر رہی ہے, لیکن خدا نہیں ہے نا ان کی زندگی میں, ان کی عقلیں برباد ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کہاں لے آئے قوم. تو 2 بالیاں ہوتی ہیں کان میں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے الگ ٹائپ کی چیز ہے. یہ وہی ہے جو میں نے بھی نمونے کی مثال دی آپ کو. خیر, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 3 بیماریاں ہوتی ہیں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا, سب سے مشکل. پھر اس کے بعد حب مال کا, پھر اس کے بعد حب باہ, یعنی جو شہوت کی ٹھڑک ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے, لیکن پچھلی 2 بیماریوں کی نسبت آسان ہے.
مجھے یہ یوتھ کلب والے نا یہ یونیورسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 سال پہلے حج پہ گیا, یہ ملے مجھے, وہ جو راجہ ضیاء نام ہے نا ان کا, کہنے لگے مفتی صاحب بڑے اکیلے بیٹھ کے نا ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ رہے یار یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایک ماں میرے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے کی گرل فرینڈ ہے تو میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے آج بھی اس طرح کا میسج بھیجا, کہہ رہے ہیں ابھی معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. مجھے لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے, اتنا بھی نہیں ہے یار. کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ماں کو سمجھایا گرل فرینڈ ہے, اس کا حل ہے, شادی وادی ہو سکتی ہے, اس سے ہٹا کے کسی اور لڑکی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے ادھر کر لے, یا شادی کے بعد جیسا بھی ٹھرکی ہو کسی حد تک تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ایک شادی سے ٹھیک نہیں ہوگا دوسری کرا دیں گے. کہہ رہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو بوائے فرینڈ, یعنی یہ تمہارا بچہ کیا چل رہا ہے, ایسا نہ ہو اب آپ لوگ بنانا شروع کر دو کہ ہم تو حرام, گرل فرینڈ بھی حرام ہے, قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. اچھا میں یہ بات سن کے حج سے واپس آیا, میں بڑا پریشان کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت, ایک فون آیا میرے پاس, مسائل میں تھوڑا کبھی کبھار سن لیتا ہوں. خاتون کا فون آیا, کسی نے بتایا کہ بھائی بہت عرصے سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے فون اٹھایا, میں نے جی ارشاد فرمائی. مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ہے, بار ادھر ہی لانڈی کی خاتون, میرا بیٹا ہے, میری زندگی عذاب بن گئی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے میری شادی کرو. تو میں نے کہا تو بہت اچھا کہہ رہے ماشاءاللہ, کر دیں. کہہ رہے نہیں جمشید سے کہہ رہے میری شادی کرو. میں نے کہا میں ہل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ تو میں نے کہا شاید بیٹی کو غلطی سے بیٹا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میرا بیٹا. کہہ رہی یہ لڑکا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی آپ کو سن کے جو ٹینشن ہوئی ہے سوچو جو میں ماں ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں نے کہا یہ کیسے؟ اس کو کہہ رہی فیس بک پہ کسی گورے نے خراب کیا ہے اس کو. فیس بک پہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں نا, کسی گورے کی ریکویسٹ آ گئی تھی, اس گورے سے دوستی, اس نے اس کو کیا بنا دیا گے. اب اس کا دل کس پہ آ رہا ہے؟ ادھر لانڈی ہی کے کوئی جمشید صاحب نہ سمجھے, یہ تو میں نے فرضی نام بتایا جمشید, اس کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا, فرض کر لو جمشید تھا وہ. دل کس پہ آ گیا ہے؟ میں نے تو زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ سنا بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگی میں وہ فیس بک پہ اس کو خراب کر دیا کسی نے. میں نے